I'm going to start the recording again. हाँ, अब मुझे बताओ लेटर राइटिंग का पर्पस क्या है? व्हाई डू वी नीड टू लर्न अबाउट लेटर राइटिंग इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ हाईटेक सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन? बताओ हर्षित, मोहित. Ma'am, because it increases our skill. इट इंक्रीजेज आवर स्किल. ठीक है, वो तो लैंग्वेज हमारी स्किल ऑलरेडी इंप्रूव कर रही है. अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? लेटर राइटिंग हमें क्यों पढ़ना है? हमारी One more way of communicating. हर्षित, कम अगेन. हम कम्युनिकेशन का एक और वे है. कम्युनिकेशन करनी है, पर वो कम्युनिकेशन तो हम व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, हम फेसबुक से भी कर सकते हैं, फोन से भी कर सकते हैं. तो फिर ये लेटर राइटिंग क्यों? मैम एक सेकंड. बताओ, सोच के बताओ. हम लेटर राइटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि स्टिल आज चाहे हम फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें या फोन्स की बात करें, हमें जहां एक फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, चाहे वो सीबीएसई में कम्युनिकेट करना हो, चाहे वो किसी बैंक में किसी अकाउंट के लिए हमें कम्युनिकेट करना हो, किसी पुलिस इंचार्ज को हमें कम्युनिकेट करना हो, स्टिल द फॉर्मेट, द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन that is reliable and having a proof is letter. तभी हमें लेटर राइटिंग को पढ़ना और सीखना जरूरी है. आज भी अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो चाहे कितने ही ईमेल्स के थ्रू चला जाए, लेकिन जब तक हम अपना कैंडिडेचर अपने लेटर के साथ अप्लाई नहीं करते, हमारा लेटर एक्सेप्ट नहीं होता, हम जॉब के लिए श्योर नहीं हो सकते. हर्षित, यू वर सेइंग समथिंग? मैम अक्षत बोल रहा है, आपने उसको मीटिंग से रिमूव कर दिया. मैंने और अब ऐड कर लो. मैंने नहीं किया उसको, को दोबारा एंटर करे. मेरी सिग्नल एरर हो गया था, मैं अपने आप ही रिमूव हो गई थी. मैम वो बोल रहा है वो ऐड नहीं हो पा रहा. उसे कहो लिंक से दोबारा ज्वाइन करे. ओके मैम. ओके, आस्क हिम टू ज्वाइन अगेन. हाँ, तो अब लेटर राइटिंग का पर्पस समझ आया? यस मैम. ओके, सो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. पहले मोहित पढ़ना स्टार्ट करना. ठीक है मोहित? Yes, ma'am. यस. इज माय स्क्रीन विजिबल, मोहित? Yes, ma'am. यस, स्टार्ट रीडिंग. Letter writing. Letters are an effective means of communication. In spite of advent of modern technologies like cell phones and SMS, letters still hold their important and prominent place in the field of communication. Types of letter writing: formal letters. These letters are written in formal situations. These are written to organizations, firms, government authorities, editors, and school authorities. The purpose of formal letter is related to work, business, permissions. Informal letters. These letters are written to the friends and relatives. These are informal in the manner of language, style, and content. These are more expressive, emotional, and personal. The purpose of informal letter is only to exchange news and information regarding friend and family. Parts of a formal letter. Sender's address. Can you please scroll down? यस बच्चा, एक मिनट. Sender's address, date, receiver's name and address, salutation from the address, greeting like dear sir, subject, reason for writing the letters, body of the letter. This contains the description of the contents. It should be written in simple, direct, and formal language. The content should be conveyed in 3 paragraphs. The first paragraph is introductory, a statement of subject. The second paragraph should state the problem issue in detail. The third paragraph states what is accepted of the receivers of the letter. It should contain any suggestions that the writer wants to give. For the example, municipal authorities. For subscription, this is the leaf taking note and depends upon the relationship between the writer and the addressee, such as yours faithfully and yours sincerely. Signature of the persons and full name who has written the letter in capital letters in the brackets below the signature.
Apart from the format, the expressions is also an important part of letter writing. The idea should be expressed in a logical sequence with coherence using correct grammatical structures. A formal letter should always be precise, to the point, crystal clear, and easy to understand. It should be written in legible handwriting. legible handwriting. Legible handwriting. Important. Note the openings and closing. ओके मोहित बेटा स्टॉप. सो अब हमें पता है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों डिफरेंट होते हैं. फॉर्मल लेटर होते हैं जब व्हेन वी आर राइटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, गवर्नमेंट अथॉरिटी, एडिटर, स्कूल अथॉरिटी. सो द पर्पस इज Ma'am, Akshit is saying he is still unable to join. बच्चा, I have not removed him from the meeting. I don't know why. अच्छा एक मिनट रुको, मैं जरा स्टॉप शेयर करके ना पहले उसे एंट्री दूं. अब देखो उसे कहो अब दोबारा ट्राई करें. हर्षित, आस्क हिम टू ट्राई अगेन. Okay, ma'am. आ गया अक्षत? अक्षत, आर यू आ देयर? गया ma'am. अक्षत, आर यू देयर? मैम उस वाली आईडी से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा. बेटा एक बार अपना कनेक्शन चेक करना, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी कि जो जैसे ही मेरा कनेक्शन खराब हुआ ना एकदम, जब मेरा एकदम क्लास बंद हो गई, व्हेन आई एंटर्ड अगेन आई डिड नॉट सी यू, और मैंने किसी को रिमूव नहीं किया. हर्षित, मोहित ऑलरेडी थे, शायद वो आपका भी कनेक्शन एरर उसी टाइम हुआ है. अब मैंने जैसे ही वेटिंग रूम डिसेबल किया वैसे ही आप एंटर कर गए. ठीक है, चलो अब कोई बात नहीं, आज की क्लास तो लो, उसको बाद में चेक कर लेना. ठीक है, चलो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन. यस, तो फॉर्मल लेटर, अक्षत अभी तक हमने यही बात की कि लेटर हम क्यों लिखते हैं. लेटर लिखने का पर्पस है कि आज भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं हम, रिलेटेड टू वर्क, बिजनेस, परमिशन, जॉब एप्लीकेशन, वी नीड some formal kind of writing. That is why we use formal letters. Informal letter वो सबको पता है, informal name से आ रहा है, the letters which are written to friends or family. अब हम एक एक पार्ट पे बात करेंगे. आप लोगों ने इस बारे में ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में बहुत कुछ पढ़ा है. हम सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है. सेंडर्स एड्रेस, जनरली आपको जो 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आता है उसमें सब कुछ दिया होता है. सेंडर्स एड्रेस, लीविंग अ लाइन, फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना है. फॉर्मेट में आपको सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद लाइन जरूर छोड़नी है. अब जरा मुझे लिख के चैट बॉक्स में लिखो, डेट कैसे लिखेंगे. जरा तीनों चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे डेट कैसे लिखी जाएगी, जल्दी से. हर्षित, मोहित, अक्षत, चैट बॉक्स में लिख के बताओ डेट कैसे लिखी जाएगी. Ma'am, first the date and then the month and then the year. Okay, date, month and year. हर्षित, स्लाइड प्रॉब्लम, द वे इन विच, तभी मैं कह रही हूँ. मोहित आप भी लिखो एक बार चैट बॉक्स में. हर्षित ने लिखी है डेट, अक्षत आप भी लिखो डेट, देन आई टेल यू द राइट वे. जैसे आज की डेट क्या है, May 5, राइट? लिखो जल्दी से डेट लिखो सारे. चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो. नहीं हर्षित, अभी भी गड़बड़ है. मोहित थोड़ी सी गड़बड़ है, अभी बता रही हूँ मैं. अक्षत आप लिखो. अब देखो मैंने लिख के भेजी है. नहीं देखो, देर आर 2 ways ऑफ राइटिंग द डेट. चैट बॉक्स में देखा मैंने जो लिख के भेजा है. या तो आप इस तरह से लिखो, मंथ पहले, फिर डे, और उसके बाद फिर ईयर. अगर आप ऐसे लिख रहे हो जैसे आप लोगों ने पहले लिखा 5 May 2021, देन मेक श्योर यू आर राइटिंग इट एज अ ऑर्डिनल 5th May, नॉट 5 May, 5th May, right? So this is the way, these are the 2 ways of writing the date. इसको नोट करना हो तो अपने पास नोट कर लो. कभी भी आप नोटिस राइटिंग लिख रहे हो, लेटर राइटिंग लिख रहे हो, आपको डेट इसी तरह से लिखनी है. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस. अब रिसीवर्स नेम यहाँ पे क्या होगा, डेजिग्नेशन. यहाँ पे नेम जो लिखा गया, नेम का मतलब क्या है, रिसीवर का डेजिग्नेशन. एडिटर है तो एडिटर, पुलिस कमिश्नर है तो पुलिस कमिश्नर, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर.
राइट? तो जो भी डेजिग्नेशन है उस डेजिग्नेशन के लिए हम ये लिख रहे हैं, रिसीवर्स नेम, एड्रेस, कंपनी का प्रोफाइल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है तो वो एड्रेस हम मेंशन करते हैं। सैल्यूटेशन, अब सैल्यूटेशन के बाद यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, इट हार्डली मैटर्स आप सब्जेक्ट पहले लिखो या सब्जेक्ट बाद में लिखो, लिखना इंपॉर्टेंट है। सैल्यूटेशन, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, सर और मैम, जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट हम क्यों लिखते हैं? सब्जेक्ट का पर्पस क्या है? मैम लेटर पढ़ने से पहले बंदे को पता लग जाए कि किस बारे में है लेटर। तो क्या जरूरत है, हमारा लेटर पढ़ के नहीं पता लगेगा किस बारे में है? पढ़ने से पहले ही अगर पता लग जाए हमारा मैम तो पहले एक आइडिया बन जाएगा ना कि इस बारे में है, तो वो अपनी एक पहले माइंड में इमेज बना लेगा। वेरी गुड। सो पर्पस इमेज बनाने की नहीं है, पर्पस ये होता है कि जब हम ये सब्जेक्ट लिखते हैं, इसका टारगेट ये होता है कि जो रीडर है, रीडर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा लेटर लिखे, पूरा लेटर पढ़े, सॉरी। सो पूरा लेटर पढ़ने से पहले उसे आइडिया लग जाए कि अगर अब मैंने जनरल लिखा डायरेक्टर, अब डायरेक्टर के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, अब अगर मेरी कंप्लेंट है कि या फिर मुझे कुछ पूछना है, मुझे किसी चीज के बारे में कंप्लेंट करनी है दैट द सर्विस ऑफर्ड वाज नॉट गुड, तो वो सर्विस डिपार्टमेंट का जो रिलेशनशिप मैनेजर है, डायरेक्टर, उसको फॉरवर्ड कर देगा सब्जेक्ट पढ़ते ही कि ये कंसर्न जो है ये किस टीम का है, राइट? समझ आ रहा है सब्जेक्ट लिखने का पर्पस? जब भी हम एक ब्रॉड एरिया में डिवाइड करते हैं तो जिसको भी हमने डेजिग्नेशन लिखा है उसके अंडर भी एक पूरी टीम काम कर रही होती है। तो सब्जेक्ट लिखने का पर्पस ये होता है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ के अकॉर्डिंगली उस टीम के पास उस लेटर को चैनलाइज किया जा सके। द लेटर शुड बी रीचिंग द राइट पर्सन टू टेक एन एक्शन अपॉन, दैट्स व्हाई वी राइट सब्जेक्ट, एंड आइडियली the subject should be maximum 4 to 6 words or 1 line, not more than 1 line in any condition. सब्जेक्ट आपको उतना छोटे से छोटा लिखना है जितना पॉसिबल हो। अब ये इसका क्या पर्पस है, छोटा क्यों लिखना है बताओ? सब्जेक्ट छोटा क्यों लिखना है? सब्जेक्ट को हम बड़ा क्यों नहीं कर सकते? जितना क्वेश्चन में दिया हो उतनी लंबी लाइन लिखते, चाहे 2 में है चाहे 3 में है, छोटा क्यों करना है उसे? Because it is easy to understand. It is not only easy to understand, Mohit, but also at the same time as small, as short and as precise it is going to be, as easy it is going to be, as equally easier to identify the thing without wastage of time, right? अब आप लोगों को टेक्निक वो मैं बता रही हूँ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है अपने लेटर राइटिंग में। कभी भी अगर आप लेटर राइटिंग को इस टेक्निक से लिखोगे, आपके मार्क्स ये जरूरी नहीं है कि हर बार कटे, चाहे हमारी राइटिंग उतनी अच्छी ना हो, चाहे हमारी लैंग्वेज स्किल उतनी अच्छी ना हो, फिर भी अगर हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं तो हमें लेटर राइटिंग में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कहाँ कहाँ हमें हाईलाइट करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने सब्जेक्ट को जरूर अंडरलाइन करना चाहिए। Every time when we are writing our subject, we need to underline that this is the highlighted thing that we want to convey through our letter, right? A body of the letter, this contains the description of the contents. अब जो भी कुछ है हम अपने लेटर में लिख रहे हैं वो हमारा body of the letter के थ्रू आगे आता है। It should be written in simple, direct and formal language. अब हर एक तरह के लेटर की एक फॉर्मल लैंग्वेज डिसाइडेड है कि आपको उसे कैसे स्टार्ट करना है। The content should be conveyed in 3 paragraphs. This is ideal, 3 paragraphs, लेकिन आपकी वर्ड लिमिट और आपके उसके अकॉर्डिंग 3 के 4 भी हो जाए, 3 का 2 नहीं होना चाहिए, मिनिमम 3 तो है ही है, ठीक है? The first paragraph is introductory. अब ये पैराग्राफ लिखना सबसे इजी होता है क्योंकि इसमें का मेजर कंटेंट हमें क्वेश्चन से मिल जाता है। A restatement of the subject. We are again restating the subject. We are rewriting the subject, but in a detailed manner. The second paragraph should state the problem or issue in detail. Now, second paragraph is talking about the problem in detail. The third paragraph states what is expected, the solution, the suggestion, or anything that you want to add, right? Subscription. This is the leave taking note. Leave taking note means yours sincerely, yours faithfully. अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, ये जो वाई आपको दिया हुआ है
योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। 12th स्टैंडर्ड में जब बोर्ड चेकिंग होती है, इस चीज के मार्क्स कट जाते हैं कि बच्चों ने ये, जैसे अब यहाँ पे मिस्टेक है, y और s दोनों स्मॉल है, वो नहीं करना आपको, या y और s दोनों कैपिटल कर देते हैं, वो भी नहीं करना। y कैपिटल f स्मॉल, यहाँ पे भी y कैपिटल s स्मॉल। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स का y कैपिटल होगा, फेथफुली का f स्मॉल होगा, राइट। सिग्नेचर Okay, ऑफ द ma'am. पर्सन, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन एंड फुल नेम हु हैज रिटन द लेटर। अब सिग्नेचर हम आप लोगों को जनरली करने के लिए नहीं कहते, बट यू नीड टू राइट द फुल नेम एज गिवन इन द क्वेश्चन। restrain yourself from writing your own name. Okay, writing your own name, and it is written that you have to write who has written the letter in capital letter with brackets below the signature. Generally when we write, we, like if I am writing as a teacher a letter to my authorities, then what I am going to do, I am going to put my signature in brackets below the signature. I am going to write my name and then my designation. That is the proper way of writing the letter, right? Apart from the format, the expression is also an important part of letter writing. The ideas are to be expressed in a logical sequence with coherence. अब coherence क्या होता है? कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस इज कनेक्टिविटी। फर्स्ट पैराग्राफ की कनेक्टिविटी सेकंड पैराग्राफ से होनी चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में जो पॉइंट्स है वो आपस में कनेक्टिविटी, ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कंप्लेंट लेटर लिख रही हूँ, 1 मिनट मैंने लिख रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बार बार जाती रहती है, और 1 मिनट में मैं लिख रही हूँ कि हम तो सो ही नहीं पाते। मुझे अब कनेक्शन मेंटेन करना है। इलेक्ट्रिसिटी जाती है जिसकी वजह से मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। ऑड आवर्स पे जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो इट बिकम्स वेरी अनप्लान्ड, वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, राइट। मैं सडनली अपना पॉइंट पे जंप नहीं कर सकती, मुझे कनेक्टिविटी में अपने पॉइंट्स को लेके चलना। यूजिंग करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल मीन सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि आपका सेंटेंस अप्रोप्रिएट होना चाहिए ग्रामेटिकली। अ फॉर्मल लेटर शुड बी प्रिसाइज, प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट। हमें फालतू की कोई भी कोटेड लैंग्वेज, शुगर कोटेड लैंग्वेज, बटरिंग, फ्लैटरिंग नहीं लिखनी है उसमें। क्रिस्टल क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, and handwriting should be very very legible. Legible means understandable, right? Opening और closing का हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। Opening closing means dear sir और madam, right? Yours faithfully, dear। अब यहाँ पे हमने मिस्टर गुप्ता लिख दिया और उसके बाद yours sincere, right? अब देखो लेटर टू एडिटर के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। सब कुछ वही है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, सब कुछ वही है, ठीक है। यहाँ पे अब बॉडी ऑफ लेटर 3 पैराग्राफ, लीव 1 लाइन बिटवीन पैराग्राफ। आई होप ये आप सबको पता है ऑलरेडी। यहाँ पे जितने गैप्स हैं, ये जितने स्पेसेस हैं, दे आर ऑल द प्लेसेस वेयर यू नीड टू लीव अ लाइन। यस, बॉडी ऑफ द लेटर में आपको, यस मोहित। Ma'am, when we write the first paragraph, when we writing to editor, ma'am, we always write a line that I want to bring some facts. Yes, I am going to talk about that line, that introduction thing. Every kind of letter through this PDF, I'm going to give you, for every kind of letter, there is some kind of introductory line that we add on, and you can learn it by heart so that whenever you people are writing your letters, you can use it, right? Apart from this, yes, Harshit? मैम कौन सी लाइन? अभी बताऊंगी, रुक जाओ, अभी क्वेश्चन पे चलेंगे ना तब वो लाइन बताऊंगी। इसके अलावा जब भी आप लेटर राइटिंग लिख रहे हो, खास तौर से फॉर्मल लेटर, आपको आई यूज नहीं करना। क्या नहीं यूज करना? आई और वी यूज नहीं करना। आई और वी यूज करते ही आपका लेटर इनफॉर्मल बन जाता है। अब तुम लोगों का क्वेश्चन होगा, मैम फिर लिखेंगे कैसे अगर आई नहीं यूज करेंगे तो? हर्षित कुछ कहना है? बॉडी ऑफ लेटर में हर्षित दोबारा बोलो। हम बॉडी ऑफ लेटर में आई वी यूज नहीं करना। नहीं करना जब तक पर्सनल ना हो कि आप अपनी तरफ से लिख रहे हो। अब जैसे मैं लिख रही हूँ, मुझे क्वेश्चन मिला है कि आपको एक जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिखना है, वहां मैं आई यूज करूंगी। अगर मैं एडिटर को लेटर लिख रही हूँ, मैं किसी भी हालत में आई यूज नहीं करूंगी। अब ये लेटर जो है ये तो नेट से कॉपीड है, तो आपको हो सकता है जो नेट पे लैंग्वेज मिले उसमें आपको आई और वी का यूज मिले,
बट बेटा मैं जिस तरह से आपको ग्रूम कर रही हूँ वहां पे पर्पस ये है कि आपको आई और वी यूज नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस आप डे 1 से करोगे। और कैसे आई और वी के बिना भी हम लेटर की स्ट्रक्चर को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सकते हैं, वो अभी देखना मैं बताऊंगी तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा। और हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, लेफ्ट अलाइनमेंट में हम चलते हैं, सारे एक अलाइनमेंट में देख रहे हो, तो सारा एक अलाइनमेंट में ही लेटर चलेगा। देखो, राइट अ लेटर टू द एडिटर द हिंदू Chennai about rash and reckless driving by the people in your city, suggesting preventing measures. You are Kamal or cover of 10 Mount Road, Velacheri. अब 10 माउंट रोड वेलाचरी तो है मेरा एड्रेस, तो मैंने सबसे पहले वो लिखा। उसके बाद डेट देखो 31 अक्टूबर, अब मैंने ऑर्डिनल के साथ लिखी है डेट 31 अक्टूबर 2000 XX करके। द एडिटर द हिंदू चेन्नई, ब्रॉड एड्रेस लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग, फिर लाइन छोड़ी सर। अब देखो, थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, अब यहाँ पे इतना आई यूज किया तो ठीक है। आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द रैश and reckless driving by our city drivers, which has led to an unprecedented rise in the number of road accidents. अब अगर मैं लिख रही होती लेमन में टर्म्स में, तब भी मैं ये लिखती। आप लोगों को याद है 10th स्टैंडर्ड में जब लेटर राइटिंग करते थे तो लिखते थे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। यस मैम। यस, वही सेम लाइन है। अगर वो लाइन भी याद ना आए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर और आई वुड हियर लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप ऐसे भी स्टार्ट करोगे ना। इसके अंदर पहले इंट्रोडक्शन थोड़ी ना आ रहा है। इंट्रोडक्शन आ तो गया बच्चे। आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग, किस बारे में बात कर रहे हैं हम, वही आ गया ना, सब्जेक्ट का ही तो आ गया, क्वेश्चन इसी बारे में है ना। तुमने सेकंड पैराग्राफ दिखाना। अब सेकंड पैराग्राफ ही दिखा रही, ये देखो। अब देखो यहाँ कहीं आए है सेकंड पैराग्राफ में, देखो। नो मैम। अब जरा अक्षत, आर यू देयर? यस बच्चा। फ्रॉम सर थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, रीड फ्रॉम देयर बेटा एंड नोटिस द लैंग्वेज। फिर मैं बात बताऊंगी तुम लोगों को कि लैंग्वेज किस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है? अक्षत पहले पढ़ो बेटा। Sir, through the medium of our esteemed newspaper, I wish to express my concern about the rash and reckless driving by our city drivers, which has led to an unprecedented rise in the number of road accidents. Continue reading. One now feels rather scared of these reckless drivers who, it seems, are all geared to drive over people and collide with other vehicles. Serious thinking and stern measures need to be taken up by the traffic police to prevent this problem. Heavy fines should be levied on over-speeding drivers and those who do not follow the traffic rules. After 3 consecutive fines, the license of reckless drivers should be confiscated for a minimum period of 6 months. The traffic police needs to deal very strictly with these careless citizens who indulge in such dangerous driving. Through the column of a newspaper, I would like to appeal to the concerned authorities to give this problem their immediate attention. Yours sincerely, Kanwar. अमर, ओके, थैंक यू अक्षत। अब यहाँ देखो, ये एक तो लेटर तो एक आपके सामने ऑलरेडी है जिसमें कि रेकलेस ड्राइविंग के बारे में बात हुई, दैट व्हाट शुड बी डन, राइट? अब मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना और कंपेयर करना। आई एम नॉट गोइंग टू यूज आई इवन अ सिंगल टाइम। यहाँ पे ऊपर और नीचे यूज किया है ना, आई एम नॉट गोइंग टू यूज आई और वी इवन अ सिंगल टाइम। Yes, sir. Through the column of your esteemed newspaper, it is highlighted that the cases of rash and reckless driving are on a hike in the city these days. This all has led to an unprecedented rise in the number of road accidents. My first paragraph is over. Now, people nowadays feel really scared of these reckless drivers who, it appears, are all geared to drive over people and collide with other vehicles. Not only they drive recklessly, but at the same time, there is an increase in the number of road rage
cases as at the same time. Serious thinking and stern measures need to be taken up by the traffic police to prevent this problem. Heavy fines can be a really positive solution for preventing the overspeeding and motivating the people to follow the traffic rules. Not only this, after 3 consecutive fines, the license of such driver should be confiscated for a minimum period of 6 months, or with repetition of such incidents, the driving license should stand to be ineligible. The traffic police needs to handle these cases really strictly so that such careless citizens who are indulging in careless driving may learn a lesson. You are requested to give some space to this letter in your esteemed newspaper to awaken the authorities for a right and needful timely action. Looking forward to a positive response from your side. Yours sincerely, Kamal. अब मैंने I एक भी बार यूज नहीं किया. मैम वो जो इंट्रोडक्टरी लाइंस होती है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर्स, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन? आपके न्यूज़पेपर जिसकी इतनी रेपुटेशन है मार्केट में, आपके उस मार्केट में रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू, क्योंकि अगर मैं जो लेटर लिख रहा हूँ, आपने देखा सिटीजन्स रिपोर्टर आता है नव भारत टाइम्स में, देखा है सिटीजन्स रिपोर्टर का कॉलम? नो मैम, नेवर रीड न्यूज़पेपर्स. हिंदी न्यूज़पेपर में आता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आता है. देयर इज अ सिटीजन्स कॉलम. So that citizens column is actually highlighting the problem of common people in their particular societies, and these problems reach the editor through these letters. तो I am saying कि अपने न्यूज़पेपर के, जो आपका न्यूज़पेपर जिसकी इतनी रेपुटेशन है मार्केट में, अगर आप उसके कॉलम में मेरी इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करोगे, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल. उसके बाद मैंने अपनी प्रॉब्लम को डिटेल आउट किया है. दैट विल गिव द एडिटर द क्रक्स of the situation, and he or she would be able to write about it. And then in the end I am writing, you are requested to highlight the same in your newspaper to get an early and timely action from the authorities. क्योंकि कई बार हमने देखा है जो चीज न्यूज में आ जाती है, न्यूज़पेपर में आ जाती है, उसमें एक्शन बहुत जल्दी होता है. राइट मोहित, डिड आई आंसर योर डाउट? यस मैम. Okay. It's clear. Okay, so beta, from today onwards, whenever the topic is being done in your school, whenever you are writing any letter, make sure that you are trying, गलतियां होंगी शुरू में, but make sure that you are trying not to use I or we in your letter. I और we को बिना यूज के जितना हम लेटर की लैंग्वेज को लिख पाते हैं, our letter becomes more and more. मैम हर लेटर में, फॉर्मल लेटर में खास तौर से हर लेटर में पॉसिबल होता है. अब प्लेसिंग ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं. पता है क्या होता है, आई और वी का लॉजिक सिर्फ इतना है. आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा था, याद है 9th-10th में? सिर्फ वो है. एक्टिव वॉइस में हम आई और वी को यूज करते हैं क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. पैसिव वॉइस में हम वो सब हटा देते हैं. तो हमें हमेशा फॉर्मल लेटर में कोशिश करनी है कि हम पैसिव वॉइस को यूज करें और आई और वी को यूज ना करें. और अगर अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, देखना लैंग्वेज इतनी डिफाइन हो जाएगा. आई हैव सीन स्टूडेंट्स वर्किंग अपॉन इट, एंड बाय द टाइम दे फेस देयर एग्जाम्स, दे आर एक्चुअली एबल टू हैंडल द क्वेश्चन विदाउट आई और वी. राइट, अब चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्लेसिंग ऑर्डर और कैंसलिंग ऑर्डर्स. तो पहला तो बहुत कॉमन था, हमने अब तक बहुत बार किया है. प्लेसिंग ऑर्डर भी आप लोगों ने किया है. yes, प्लेसिंग ऑर्डर्स भी 10th स्टैंडर्ड में भी किया, 11th में भी किया. यहाँ पे भी अब सब कुछ सेम है. एड्रेस गिवन, डेट. अब रेफरेंस नंबर का क्या मतलब है? रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है. करो गैस. पिन कोड? नहीं, पिन कोड भी नहीं है. अब देखो रेफरेंस नंबर क्या होता है.
आप लोगों ने देखा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स थ्रू द पब्लिक सर्कुलर्स और तो टेंडर नोटिस के नाम से आपने देखा होगा. हैव यू सीन द इंग्लिश न्यूज़पेपर टेंडर नोटिस? Yes, ma'am. यस. अक्षत, हर्षित, हैव यू नोटिस टेंडर नोटिस के नाम से एक सर्कुलर्स होते हैं, बॉक्सेस में बने होते हैं इन इंग्लिश न्यूज़पेपर स्पेशली. जो क्लासिफाइड्स का कॉलम होता है उसके बाद जनरली आते हैं लास्ट के पेजेस पे. अब कहते हैं मैम न्यूज़पेपर कहाँ देखते हैं हम. अब लॉजिक समझो. हमें पेमेंट से रिलेटेड कुछ होता है? पेमेंट से रिलेटेड नहीं होता. पेमेंट ठीक है उसमें होता है. आप लोगों ने ये जितने ये मूवीज वगैरह आती हैं, टेंडर नोटिस इज अबाउट कि जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ. मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, सपोज मैं स्कूल का एग्जांपल दे रही हूँ, एक बेसिक एग्जांपल. एक गवर्नमेंट स्कूल है. गवर्नमेंट स्कूल में अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है तो वहां पे यूनिफॉर्म का नीड है. ठीक है. अब मेरे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं. जो पुरानी कोटेशंस थी वो भी हैं. अब मुझे नए सेशन के लिए यूनिफॉर्म का ऑर्डर देना है कि यूनिफॉर्म कौन बनाएगा हमारे स्कूल के लिए. अब मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर में वैकेंसी दी, न्यूज़पेपर में टेंडर नोटिस दिया दैट दिस एंड दिस स्कूल नीड्स यूनिफॉर्म फॉर दिस सेशन एंड द इंटरेस्टेड कंपनीज कैन सेंड देयर कोटेशन. अब कोटेशन में क्या होता है, जैसे हर्षित भी इंटरेस्टेड है, मोहित और अक्षत तीनों इंटरेस्टेड हैं कि हम इस स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे. ठीक है. अब आपने जब अप्लाई किया उस कोटेशन में आप क्या लिखते हो कि मैं यूनिफॉर्म कितने चार्ज पे दूंगा, मेरी पर यूनिफॉर्म टेलरिंग कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है पर यूनिफॉर्म का जो पूरा सेट है उसमें मेरी क्या कॉस्ट होगी. सपोज हर्षित ने चार्ज किए 400 रुपीज, मोहित ने चार्ज किया 500, अक्षत ने चार्ज किया 450. अब इसके साथ साथ आपने अपनी उस कोटेशन में मेंशन किया व्हाट फैब्रिक आई एम गोइंग टू यूज, व्हाट ब्रांड इट इज गोइंग टू बी देयर, व्हाट इज द डिजाइनिंग, व्हाट इज हाउ मच टाइम आई वुड टेक, एवरीथिंग, ऑल कंडीशंस. तो ये बन जाती है मेरी कोटेशन. अब वो कोटेशन हर्षित, मोहित, अक्षत तीनों ने मुझे भेज दी. इसके बाद मैंने तीनों कोटेशंस को कंपेयर किया. जैसे आप लोग फोन्स कंपेयर करते हो इंटरनेट पे, जब फोन परचेज करना होता है कंपेयर करते हो ना मॉडल, तो वैसे ही अब मैंने तीनों कोटेशन कंपेयर की रिगार्डिंग प्राइस, फैब्रिक, ब्रांड, कंडीशंस, सब कुछ. उसके बाद मैंने प्लान किया कि मैं टेंडर किसको दूंगी. ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया कि टेंडर किसको दूंगी. अब जो आपने मुझे कोटेशन दी थी उसका एक रेफरेंस नंबर था. सपोज कुछ भी रेफरेंस नंबर BLK, जैसे हर्षित ने अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ है तो BLK उसकी कंपनी का वो है, एक्रोनिम है. तो BLK/1/2021. ठीक है. तो अब हर्षित ने अपना जो पहला टेंडर था, कोटेशन थी, उसका ये नंबर दिया हुआ है. तो ये नंबर ही मैं यहाँ पे अब क्या करूंगी, कोट करूंगी, क्योंकि मुझे ऑर्डर प्लेस करना है. तो मैं अब आपको कैसे बताऊंगी कि मैं आपको कैसे जानती हूँ. आप जब भी किसी से बात करते हो, आप जब भी किसी से फोन पे बात करते हो, एक रेफरेंस देते हो, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे मिले थे, राइट. तो हम उसी Yes, ma'am. तरह यहाँ पे हम वो रेफरेंस नंबर दे रहे हैं. और ऑर्डर और कैंसिलिंग, प्लेसिंग ऑर्डर और कैंसिलिंग ऑर्डर में ये रेफरेंस नंबर होता है वो कोटेशन, राइट. समझ आया. तो अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप कुछ भी दे सकते हो इमेजिनरी. सपोज आप यूनिफॉर्म, अब जैसे मैंने यूनिफॉर्म का दिया था तो आपने जैसे अब मैंने अब आपको इमेजिनरी नंबर दिया BLK/1/2021. आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं. इट इज इमेजिनरी, इट इज अप टू यू, फिक्टिशियस. इसके बाद द मैनेजर. अब द मैनेजर, अब ये डेजिग्नेशन आ गई. यहाँ पे M कैपिटल आएगा, स्मॉल मत करना. नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, सब्जेक्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर और कैंसिलिंग एन ऑर्डर ऑफ सो एंड सो आइटम, जो भी हमें प्रोडक्ट परचेज करना है या प्रोडक्ट जिसका कैंसिल करना है. डियर सर और डियर मैडम. अब बॉडी ऑफ द लेटर. अब बॉडी ऑफ द लेटर में फिर आपको बहुत ध्यान रखना है, रेफरेंस टू कोटेशन डेटेड. अब हमने ऊपर रेफरेंस नंबर ऑलरेडी दे दिया ना, दिस इज इन रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड सो एंड सो डेट. अब हर्षित ने जिस दिन मुझे कोटेशन भेजी थी, ना सिर्फ उस कोटेशन पे नंबर था, उसका एक नंबर था रेफरेंस नंबर, बट उसकी डेट भी थी. तो मैंने उसी डेट को यहाँ मेंशन किया है ताकि जब हर्षित मेरा लेटर पढ़े तो उसे एकदम याद आ जाए, हाँ मैंने इस गवर्नमेंट स्कूल के लिए इस कोटेशन पे, इस कंडीशन पे अप्लाई किया था, तो अब मुझे ये टेंडर मिला है, तो मुझे उन्हीं सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए ये ऑर्डर कंप्लीट करना. समझ आया तीनों को? Yes, एक बार ma'am. वापस बता दो. समझ आ गया.
Yes, ma'am. अच्छा हर्षित, मैं एक और बार बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर की बात कर रहे हैं कि जब रेफरेंस नंबर हमने ऑलरेडी दे दिया, हमने लिख दिया रेफरेंस टू कोटेशन डेटेड। अब जो मैंने कोटेशन अपनी बनाई थी, जो हर्षित ने कोटेशन बना के मुझे भेजी है, उस कोटेशन में हर्षित ने ना सिर्फ एक नंबर दिया है बल्कि एक टॉप पे डेट भी मेंशन की हुई है। तो मैं उसी को अपने लेटर की बिगिनिंग में लिखूंगी, दिस इज इन रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड दिस एंड दिस डेट, राइट? ओके मैम। ओके, अब इसके बाद अब हमारा प्लेसिंग एन ऑर्डर या कैंसिलिंग ऑर्डर का जो भी लेटर होता है उसमें कई रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मोहित, व्हेन यू गो आउट टू परचेज समथिंग and you, or when you are doing online shopping, what all do you expect? What all do you look for? Date of delivery, Yes ma'am. mode of payment, yes, mode of payment, and Cash. the replacement policy, if replacement is possible or not. We look at all these things, right? So the same thing is to be mentioned by us in our letter, that we are going to talk about the quotation, then we are talking about the list Free of delivery charges. Harshit, come again. Free delivery charges. डिलीवरी चार्जेस और ये सब तो हमने अपनी ऑलरेडी कोटेशन में मेंशन कर दिया। हर्षित, हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। डिलीवरी Extra discount on educational हाँ, buyers. डिस्काउंट के बारे में हम बात करेंगे, मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में हम बात करेंगे, अगर कोई डैमेज होता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। मतलब क्या है? हर्षित क्या मतलब क्या कोटेशन का? कोटेशन का मतलब मैंने अभी बताया ना, जब मैंने कभी एक टेंडर खोला, मैंने टेंडर के लिए जब वो दिया, नोटिस दिया, तो आपने कोटेशन मतलब वो पूरा ब्रोशर जो आपने मुझे बना के दिया कि मैं प्रोडक्ट कितने प्राइस पे दूंगा, उसके साथ क्या क्या फैसिलिटी मैं दूंगा, वो पूरा कोटेशन बन जाता है। ओके मैम। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है पूरा। कोटेशन मीन्स पूरा डॉक्यूमेंट कि उस टेंडर के लिए जो मैंने कोटेशन फिल की उसमें प्राइस भी है, कंडीशंस भी है, फैब्रिक वगैरह सब कुछ जो डिटेल्स मांगी जाती हैं वो टेंडर फिल करने के लिए मैंने दे दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कोटेशन नंबर मेंशन किया, उसके बाद लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स या लिस्ट ऑफ आइटम्स जब भी हम मेंशन करते हैं, फर्स्टली ट्राई टू मेक इट इन अ टैबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में लिखना है आपको। अभी दिखाऊंगी मैं सैंपल क्वेश्चन। और अब उसके बाद जनरली जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो क्या होती है, आपको 4 कॉलम्स तो बनाने ही बनाने। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड नंबर नेम ऑफ द प्रोडक्ट, थर्ड नंबर क्वांटिटी या नंबर आपको कितना चाहिए, फोर्थ ब्रांड। हम जब शॉपिंग के लिए जाते हैं हम क्या देखते हैं, अगर हमें एक टी शर्ट भी लेनी है, मोहित, हर्षित, अक्षत, when we need to purchase even a t-shirt, we are color conscious about the color. Yes, फैब्रिक, अगर मैं एलर्जिक हूँ किसी फैब्रिक के लिए तो मैं फैब्रिक भी बहुत ध्यान से देखूंगी। ठीक है, ब्रांड के लिए भी हम लोग कंसर्न रहते हैं और साइज के लिए भी, राइट? तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आइटम जिसके बारे में या कोई भी प्रोडक्ट जिसके बारे में ऑर्डर प्लेस करना है, यू हैव टू थिंक एज अ कस्टमर कि अगर आप उस आइटम के लिए, आप उस प्रोडक्ट के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप उनकी क्या क्या चीजों के लिए ध्यान दोगे, और वही सारी चीजें आपके कॉलम्स में आ जाएंगी, राइट? दिस इज द टेक्निक। ओके, सो और हमें इसके बारे में और बाकी चीजों में डेट ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ पेमेंट, आइटम्स, और आपको डिलीवरी के बाद मतलब बाकी जो पेमेंट है कैसे होनी है कैसे नहीं होनी, और आइटम्स को कुछ भी हैसल फ्री, उनकी जो डिलीवरी है हैसल फ्री होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, डिस्काउंट कितना मिलेगा वो भी आपको सब मेंशन करना होगा। ठीक है, अब देखो जनरली सबसे पहला जो आता है वो बुक्स के लिए आता है। हर्षित जरा रीड करो क्वेश्चन नंबर 2। यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ आमला पब्लिक स्कूल। Amla Public School, Chennai, 30th August 2000. The manager, Mrs. धनपति एंड सन्स। No ma'am, वो आप scroll कर रहे थे। Mrs. Dhanpati and Sons, Chennai. Sub order of textbooks. Dear sir, kindly arrange the supply at your earliest book for our school at the rate approved for the year 2000. The details
of the books are as follows. मैम टेबल रीड करूं? नहीं, टेबल नहीं रीड करो, सिर्फ ये देखो, सब्जेक्ट, क्लास, ऑथर, नंबर ऑफ कॉपीज। अब इसके साथ मैं एक कॉलम और बना सकती थी, रिमार्क्स, बाउंड, हार्ड बाउंड और प्लास्टिक बाउंड, कि मतलब मुझे बाउंड चाहिए या नहीं चाहिए नोट बुक्स, बाइंडिंग के साथ चाहिए या बाइंडिंग के बिना चाहिए। ठीक है, ओके, कंटिन्यू रीडिंग। It must be ensured that the latest edition of books are being supplied. Before supplying the books, it must be checked that each book is of latest edition. Payment will be released only after the approval by principal. Yours sincerely, Raghavan, librarian. राइट, समझ आया? अब यहाँ पे देखो, हमने बुक्स Yes, के बारे में ma'am. बात की। अब यहाँ पे हमने कोटेशन नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये पर्सन, हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन ही बता रही, काइंडली अरेंज द सप्लाई एट योर अर्लीस्ट द बुक्स फॉर आवर स्कूल एट द रेट्स अप्रूव्ड फॉर द ईयर 2000, मतलब पिछले साल भी हम ऑलरेडी बुक्स ले चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे ना कोई कोटेशन नंबर आई, ना कोई रेफरेंस नंबर आया, क्योंकि ऑलरेडी पहले डीलिंग होती रही है। बुक्स के केस में जनरली ऐसा ही होता है कि ऑथर, पब्लिशर, इनके साथ कांटेक्ट ऑलरेडी पहले से होते हैं, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Yes, ma'am. Mohit, read third question. Now this is about the cancelling an order. Ma'am, actually we used to write especially for education we use it that Mohit, your 5% of additional discount is Mohit, also your voice due is to breaking. Yes, ma'am. Please was very breaking. Ma'am, is it here now? Speak up, Ma'am? then it will be identified. Speak up. Excuse me, ma'am. Yes, Is it clear now? yes, it is better. Ma'am, actually in 11th, when we used to write this letter of placing an order, especially for education related to education, ma'am, our ma'am says us to write a line that 5% of additional discount is given to the That's what I'm educational saying, buyers. ना? You have to write it. अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि जिस रेट पे आप लास्ट ईयर दे रहे थे उस पे देना है, राइट? Okay, ma'am. इसीलिए यहाँ पे वो लाइन नहीं, अदरवाइज आपको डिस्काउंट के बारे में लिखना है, क्योंकि आप Okay, बल्क ma'am. में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, राइट? यस, नाउ मोहित, Okay, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3, रीडिंग। Okay, ma'am. You have placed an order for a few books with City Central Bookshop, shop number 10, Paharganj, Delhi. You have not received their books so far. Write a letter to the bookshop complaining about the non-compliance of your order. National Secondary School, Vayu Vihar, New Delhi, 25th March 2021. The sales manager, City Central Bookshop number 10, Paharganj, Delhi, 110006. Subject: non-compliance of the order number 11. अब ये देखो, ये रेफरेंस नंबर आ गया एक तरह से। मैं किस ऑर्डर को कैंसिल कर रही हूँ? जो हमने 11/RS, ये ऑर्डर नंबर है, ठीक है? Yes. यस, Ma'am, should I start? यस, यस। Sir, this is with reference to our order number 11RS dated 4th March 2021 regarding the delivery of a few books for our school library. In this respect, I regret to state that despite repeated reminders on the phone, the books have not yet been delivered to the library so far. The new session has started and the books are required urgently for reference work by the students. The non-compliance and negligent attitude shown by your shop towards the order was unacceptable. If the specified books don't reach us within 3 days from the receipt of this letter, it will be concluded that you are not interested in fulfilling this order. In this case, will be compelled to place the order elsewhere. A list of books order is being enclosed herewith. Kindly to the needful at the earliest. Yours truly, ABC Librarian. अब यहाँ पे सब कुछ सेम था, देखा? रेफरेंस नंबर आ गया यहाँ पे, हमने जो ऑर्डर दिया था उसका भी रेफरेंस नंबर। जितनी बार मैं ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी लेटर भेज रही हूँ, उस लेटर पे एक रेफरेंस नंबर डाला जाता है, ठीक है?
डेट हो गई, ऑलरेडी मेरे लेटर का पार्ट है जिसको मैंने अपने पूरे सेंटेंस में बिगिनिंग में लिखा। अब लास्ट में एक चीज देखो, एनक्लोजर दिख रहा है, फोटोकॉपी ऑफ द बुक लिस्ट। अब ये एनक्लोजर जनरली हम कहाँ पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे। इसमें कोई भी फोटोकॉपी हो गई, बिल की कॉपी हो गई, कुछ भी जो मैं एनक्लोज कर रही हूँ, ठीक है, उसको हम एनक्लोजर करके इस साइड पे लिखते हैं, राइट। Ma'am, what is an enclosure, ma'am? Can you please Enclosure tell? means something that I am attaching along with my letter. Okay, ma'am. Okay, here it was photocopy of the book list, right? समझ आया मोहित? Yes, ma'am. Understood. अब बेटा from today only make it a point, writing skills में जो भी आपको attempt करना है, whether it is notice, letter writing, whatever, report writing, you are not going to use I or we in any case. खासतौर से जब फॉर्मल नाम लग जाए उसके अंदर। नोटिस राइटिंग में तो कभी भी नहीं करना, ठीक है। अक्षत क्लास लीव कर गया था, अक्षत इज एंटरिंग अगेन। तो बेटा आज अब 7 o'clock हो गए ऑलरेडी। वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द लेटर्स इन द नेक्स्ट क्लास। अक्षत, आर यू देयर? तो बेटा मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग इसको अपने दिमाग में बिठा लो, हमें आई और वी यूज नहीं करना। जितनी बार भी लेटर लिखो, आई और वी के बिना हमें लेटर लिखना है, एंड यू विल बी एबल टू मास्टर इट सून, राइट? ठीक है, तो अब ये वाली पीडीएफ में जल्दी तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगी सो दैट यू पीपल हैव एन आइडिया। अब और कुछ पूछना है तो बताओ, और कार्तिक को कहना अगर कार्तिक की किसी से बात हो तो कि कार्तिक इंग्लिश की क्लास मिस कर देता है हर बार, ठीक है। अक्षत अब तो ठीक था, अब तो तुम ज्वाइन कर पाए। मैम मैं लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पा रहा। अक्षत, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू प्रॉपर्ली। मैम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना नहीं है? अभी नहीं, अभी सिर्फ इसको पढ़ा है ना, इसको बस अब थोड़ा सा रिवाइज करना। आप लोगों ने पिछली बार भी 11th में भी किया है। मैम पीडीएफ भी भेज देना फिर। हाँ, मैं पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। आई विल शेयर द पीडीएफ। ओके, चलो बाय ऑल ऑफ यू। अच्छा अक्षत, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डिवाइस। ये जूम कितनी बार हम अपडेट करते हैं ना, तो ये जूम प्रॉब्लम करने लग जाता है। जब मैंने लास्ट टाइम अपडेट किया था, मेरा कैमरा चलना बंद हो गया था। इसकी सेटिंग्स चेक करना, मेरे ख्याल से फिर ठीक हो जाएगा। चलो ओके, बाय ऑल ऑफ यू। ओके मैम, बाय। बाय। Thank you, ma'am. अब नेक्स्ट क्लास Bye, में ma'am. 7 का टाइम है। ओके, ओके मैम। Yes, ma'am. चलो बाय।